Hello everyone, this is Manish Singh from GIC Mooldhar Lostu, Kirtinagar, Teri Garhwal. Today we are going to study the first lesson in our English literature, which is the last lesson. The last lesson has been written by Alphonse Daudet. Alphonse Daudet was a French novelist and short story writer. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War, which took place between 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland, and parts of Austria. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. सो अल्फांसे डॉडेट एक फ्रेंच नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और ये लेसन उन्होंने फ्रैंको प्रुशियन वॉर जो कि 1870 से 1871 के बीच हुआ था, जिसमें जर्मन फोर्सेस ने फ्रेंच आर्मी को हरा करके उनके जो दो टेरिटरीज हैं, दो डिस्ट्रिक्ट हैं, अल्सासे एंड लोरेन, उनको जीत लिया. सो दिस लेसन इज बेस्ड ऑन द बैकग्राउंड of that war. Now you can see this image where there is a French teacher who is teaching in the classroom and some students are sitting on their benches, and according to the lesson there are some village people who are sitting on the back benches of the classroom. And you can also see the teacher is standing in the classroom. You can notice the iron ruler in his hand. He is wearing a hat, coat, shirt and pant. Name of the teacher is M. Hamel. I would call him Mr. Hamel. So this is the background of the lesson. So when the lesson begins, जैसे ही lesson शुरू होता है तो Franz is a young boy and he is late for the school. The day has already broken and he is late for the school. Now he wakes up late in the morning, and when he realizes that he has not prepared the homework which had been given to him by Mr. Hamel, so he wanted to reach school as soon as possible because he was late and the day was already broken. So जब वो जल्दी से घर से निकलता है, so at the town hall he notices that there is huge crowd gathered at the town hall in front of the bulletin board. So टाउन हॉल के पास बुलेटिन बोर्ड के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी है. टाउन हॉल आप जानते ही होंगे कि जो बड़े शहर होते हैं वहां पर जो मेयर है उसके ऑफिस को टाउन हॉल बोला जाता है. एंड अकॉर्डिंग टू द लेसन, टाउन हॉल इज द प्लेस where people usually received information, and also all the bad news they received always came from the town hall and from that bulletin board where people were gathered. Now I would show you this map. You can see this map. These red areas, these are the territories of France, and you can see these dark areas. These are the territories of Russia. And you can see this image, a scene from the Franco-Prussian War. Now let's start the last lesson by Alphonse Daudet. Points to remember. Notice on the bulletin board about the war front. बुलेटिन बोर्ड पर युद्ध के बारे में, वॉर के बारे में लिखा हुआ है. ह्यूज क्राउड वाज गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी थी और फ्रेंच नाम का जो यंग बॉय है, लड़का है, वो टाउन हॉल से गुजरता है. व्हेन ही रीचेस टू स्कूल, he saw
समथिंग डिफरेंट सिनेरियो टुडे। जब वो स्कूल पहुंचा तो आज बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो था। यूजुअली व्हेनेवर ही वुड रीच टू स्कूल देयर वुड बी ह्यूज नॉइज दैट कम्स फ्रॉम द स्कूल। स्कूल जब वो आमतौर पर पहुंचता था तो स्कूल से बहुत शोर आता था। बट टुडे school was quiet. There was no sound at all, no noise at all, no sound of desks, lessons, teacher's ruler of Mr. Hamill. आज डेस्क की कोई आवाज, कोई पढ़ने की कोई आवाज या टीचर के आयरन जो रूलर है उसके मेज पे पढ़ने की कोई आवाज नहीं थी। He was wearing green coat, frill shirt and black silk cap. मिस्टर हैमल ने ग्रीन कोट पहना है, शर्ट पहनी है और सिल्क कैप पहना है। यूजुअली वो इन कपड़ों में रहते नहीं है, ये कपड़े वे किसी स्पेशल ओकेजन में ही पहनते हैं, यूजुअली इन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे या इंस्पेक्शन के दिन वो ये कपड़े पहनते हैं। सो फ्रेंच जब स्कूल के क्लासरूम में प्रवेश करता है, सो इट वाज अनाउंस्ड दैट टुडे इट वुड बी द लास्ट लेसन इन फ्रेंच लैंग्वेज इन दैट स्कूल एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट इन दैट स्कूल। कि आज फ्रांसीसी भाषा का वो आखिरी पाठ उस स्कूल में पढ़ाया जा रहा है और कल से फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी बल्कि जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर कंट्री। उन्होंने अपना देश हार गए हैं। उनका जो फ्रांस नाम का देश है उसके जो 2 डिस्ट्रिक्ट अल्सासे और लोरेन है वो जर्मन लोगों के पास जा चुके हैं और कल से उनकी भाषा के बजाय जर्मन भाषा उनके स्कूल में पढ़ाई जाएगी। विलेजर्स, हॉजर, पोस्टमास्टर, अदर्स ऑन बैक बेंचेस। गांव के जो रेस्पेक्टेबल पीपल हैं वो बैक बेंचेस क्लासरूम में की जो पिछली बेंचेस है वहाँ बैठे हुए हैं। एवरीवन वर्किंग वेरी क्विकली, हर कोई बड़ी शांति से काम कर रहा है एंड देयर वाज नो नॉइज एट ऑल। फ्रेंच's रिएक्शन टू लास्ट लेसन इन फ्रेंच। ये जो फ्रेंच लैंग्वेज में आज आखिरी पाठ पढ़ाया जा रहा है उसके प्रति फ्रेंच का क्या रिएक्शन है। ही वाज शॉक्ड, realized that he had not learned the language. वो शॉक्ड है और उसको इस बात का पछतावा है कि उसने अभी तक लैंग्वेज नहीं सीखी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखी। एंड ही विश्ड ही हैड नॉट वेस्टेड टाइम। उसको इस बात का एहसास है और वो सोचता है कि काश उसने समय बर्बाद नहीं किया होता और अपनी भाषा सीख ली होती। ही फेल्ट सॉरी, रिपेंटेड फॉर वेस्टिंग टाइम। उसको बड़ा दुख है और जो समय गुजर चुका है, बर्बाद हो चुका है, उसके लिए वो पछता रहा है। He appreciated Mr. Hamill accepted him with his faults. उसने मिस्टर हैमिल जो उसके टीचर हैं उनको उनकी प्रशंसा की और वे जैसे भी हैं उसके टीचर हैं और उनकी वो प्रशंसा करता है अपने मन में। He wanted to impress Mr. Hamill but fails in his recitation of participle rules. Since he had been the participle rules were given in homework and he did not prepare the lesson, but he wanted to impress his teacher but could not. Understood presence of villages. गांव के बहुत सारे लोग क्लासरूम में बैठे हैं। He understood their presence in the classroom. To thank master. All those people were sitting in the classroom because they wanted to thank the master who had been teaching in that school for last 40 years. And they were there to show solidarity for the country. वे अपने देश के प्रति अपना जो आदर है, सम्मान है, उसका भाव प्रकट करने के लिए और अपने टीचर जिसने 40 साल अपने जीवन के उस स्कूल को दिए उसके प्रति एक सद्भावना व्यक्त करने के लिए आज स्कूल में वे लोग गांव के संभ्रांत लोग, रेस्पेक्टेबल लोग जो है आए हुए हैं और बैक बेंचेस में बैठे हुए हैं। एंड दे वर आल्सो रिपेंटिंग फॉर नॉट अटेंडिंग द स्कूल। वे भी अपने स्कूल में स्वयं के पढ़ने को लेकर के पछता रहे हैं कि वे स्कूल नहीं जा पाए, पढ़ नहीं पाए। मिस्टर हैमिल मेड द क्लास रियलाइज they were reluctant to learn, postpone learning. मिस्टर हैमिल ने उन लोगों को ये एहसास कराया कि they did not take interest in learning. उन्होंने सीखने में, पढ़ने पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं लिया। And parents sent them to work. माता पिता ने भी अपने बच्चों को काम के लिए भेजा, न कि स्कूल भेजा। Himself sent students to water his plants. उनको खुद भी पछतावा है कि उन्होंने स्टूडेंट्स को पानी अपने घर के बगीचे में पानी देने के लिए भेजा। While he should have taught them in school, जबकि उनको स्कूल में पढ़ाना चाहिए था। All to blame for the situation. अब ये जिस सिचुएशन है इसके लिए हर कोई जिम्मेदार है। Too late to make amends. समय गुजर चुका है, अब उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। No time to make up for lost time. गुजर नहीं हो सकती।
नाउ मेन कैरेक्टर्स, इस लेसन में मेन कैरेक्टर्स हैं मिस्टर हैमल, जो कि स्कूल के टीचर हैं. He was a sincere French teacher, teaching French for the last 40 years. Knows subject very well. He was passionate about French language. Considers French clearest, most beautiful and logical language. Feels language as a key to guard oneself. उनको ये एहसास है कि जो फ्रांसीसी भाषा है या ये जो मदर टंग है, इट इज अ की टू गार्ड वन सेल्फ. प्राउड ऑफ बीइंग फ्रेंच, उनको फ्रांसीसी होने में बड़ा गर्व है. एंड अपसेट बाय ऑक्यूपेशन ऑफ अल्सासे बाय जर्मन्स, उनका जो डिस्ट्रिक्ट है अल्सासे, उसको फ्रेंच जर्मन्स द्वारा जीते जाने पर उनको बड़ा अफसोस है. अटैच टू टाउन स्कूल पीपल, वो गांव के लोगों के साथ, कस्बे के लोगों के साथ, बच्चों के साथ बड़े अटैच हुए हैं. पर्टिकुलर अबाउट डिसिप्लिन एंड लर्निंग. लास्ट डे मेड स्टूडेंट्स टू एक्सरसाइज ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज. आखिरी पाठ के दिन आज उन्होंने लैंग्वेज के हर हिस्से को टच किया, सभी को सिखाया. एंड ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर बीइंग सेल्फिश, उन्होंने अपने आप को भी स्वार्थी व्यवहार करने के लिए दोष दिया. ही वॉज इमोशनल, कुड नॉट अटर अ वर्ड एट द एंड ऑफ द क्लास, वो भावुक हो गए और क्लास के अंत में वो एक भी शब्द नहीं बोल पाए. French. He was a sensitive, honest boy, blames himself for ignoring lessons, feels greatly embarrassed after the announcement by Mr. Hamel. फ्रेंच को बड़ा अफसोस है कि वो क्लासरूम में ध्यान नहीं दे पाया, अपनी भाषा नहीं सीख पाया. अबाउट द लेसन बीइंग द लास्ट लेसन, और आज जो पाठ पढ़ाया जा रहा है वो आखिरी पाठ है, इसका उससे अफसोस. फिल्ड विद अ डीप सेंस ऑफ रिग्रेट, उसको बड़ा पछतावा है. पे अटमोस्ट अटेंशन टुडे, आज उसने पूरे लेसन को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश की. अंडरस्टैंड्स फीलिंग्स ऑफ अदर, गांव के जो बहुत सारे लोग बैठे हैं उनकी भावनाओं वो समझता है. इज अ गुड ऑब्जर्वर, नोटिसेस चेंजेस, वो बड़ा अच्छा ऑब्जर्वर है और आज के दिन जो बदलाव उसने देखा उसको वो समझ सकता है. एम्पैथाइजेस विद मिस्टर हैमल, मिस्टर हैमल के प्रति उन्हें सहानुभूति है. अंडरस्टैंड्स मिस्टर हैमल्स इमोशंस, एक्सेप्ट्स हिम विद हिज थॉट्स. The last lesson becomes the most memorable lesson for him. ये जो लास्ट लेसन है उसकी जिंदगी का सबसे यादगार पाठ बन जाता है. सो इस प्रकार से ये लेसन हमने पढ़ा. अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इस लेसन से. थैंक यू.